Students, welcome to my YouTube channel. So this is part 5 of our lecture series on differential equations. So those who are watching this lecture series for first time, I just request them to watch part number 1, 2, 3 and 4 of this lecture series. So today we are discussing one more important concept of this particular chapter, right? That is called a method of a variable separable, right? So in the final examination, so you may get question on this for 6 marks as well as 3 marks. Okay, to understand this concept we use some of the integration formulas, right? So ये सारे फॉर्मूले जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. So I just request students that before going through this particular concept, जस्ट ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूलेज है इंटीग्रेशन के ऊपर ये आपको अच्छे से आने चाहिए, सो दैट जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको ईजी लगेगा, राइट, टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. ओके, द फार्मूला दैट वी आर यूजिंग, राइट, इफ़ यू हैव वॉच्ड पार्ट 4, राइट, वहाँ पे भी मैंने सेम फार्मूले डिस्कस किए है, राइट. तो सेम वाले फार्मूलेज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, राइट. सो ज़्यादा से ज़्यादा हम ए वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स. जैसे कि मैंने कहा था इन द लास्ट लेक्चर, f dash of x means a first derivative of this, right, which can be directly written as log of f of x. Just observe that this is denominator, log of f of x. Then we will use some of right formulas based on integration by सब्सटीट्यूशन, ये वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, राइट. और बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलेज और एग्जांपल्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, राइट. तो ये पर्टिकुलर फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, राइट, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, राइट. एज यू कैन सी दैट सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x. So if I consider this to be my f of x, right, and if I find out what is derivative of this, as you know that derivative of 1, that is a constant 0, and derivative of tan x is secant square x. So f dash of x will be equal to secant square x. So as you can see that this is my f of x and this is my f dash of x. So it is satisfying the formula, right. So directly I can write down log of f of x, that is log of denominator. So I will write down log of denominator, that is 1 plus tan x plus c, right. So this is how we can use this particular formula, right. Similarly we can use substitution formula like this. So I'm substituting 1 plus x square is equal to t. If I differentiate, I will get derivative of 1 0, derivative of x square is 2x dx, which is equal to dt. So when I substitute, as you can see that 2x dx की वैल्यू क्या बन गई है, dt. सो पूरा मैंने रिप्लेस किया बाय dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी है, t. सो यहाँ पे t. सो एज आई टोल्ड यू, राइट, सो स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब क्या होगा, t टू द पावर 1 बाय 2, right. Now you can use the formula of integration dx divided by x raised to n, which is equal to x raised to minus n plus 1 divided by माइनस एन प्लस 1. सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बाई 2. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, राइट. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, राइट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस इंटीग्रेशन एग्जाम्पल्स सो दैट it get easier for you to understand the further concepts. Okay, so let us start examples on method of variable separable, right. Okay, so यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा हम पहले देख लेंगे, राइट. सो वेन एवर दे आस्क यू एग्जाम्पल इन द फाइनल एग्जामिनेशन और योर एग्जामिनेशन, solve x into dy by dx minus y into dx is equal to 0, right. So some of the students ask me, sir, in the final examination every question, maximum questions are given like only solve, then how we can how we get to know that this particular example can be solved by this variable separable method. So for that I will tell you that, right, you should do some practice on this particular concept. आपको concept समझ के लेना है, right. जब आपको concept समझ में आएगा so easily आप solve करोगे. और second thing I would like to tell you that कि जब ये सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा सो आई विल टेक वन सेशन ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें मैं अगले लेक्चर सीरीज मीन्स अगले
लेक्चर में करूँगा, राइट, पार्ट 6 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। ओके, फिलहाल के लिए कंसेप्ट कैसे सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, राइट। तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, इसका मतलब जो भी कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, सो वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे रहेंगे, मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे x और y ये दोनों वेरिएबल रहेंगे। तो इन दोनों वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी ध्यान देना, राइट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है मुझे, राइट। तो बताओ कि यहाँ पे वेरिएबल कौन से रहेंगे, राइट। तो वेरिएबल है x और यहाँ पे वेरिएबल है y। तो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल में वेरिएबल सेपरेट करूँगा, x एक साइड में, y एक साइड में। इज इट क्लियर? तो कैसे करूँगा मैं, अभी ध्यान देना। तो आई विल जस्ट राइट डाउन दिस वन एज x इंटू डी वाई इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स, राइट। जैसे कि मैंने कहा था x एक साइड में रहेगा और y एक साइड में रहेगा। तो यहाँ पे ए डी एक्स है और यहाँ पे x है, तो इसे मैं एक साइड में लूँगा, राइट। तो यहाँ पे बचा डी वाई और ये जो y है उसे मैं एक साइड में लूँगा। तो y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो दैट द वेरिएबल गॉट सेपरेटेड, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस कंसेप्ट, दिस मेथड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इज इट क्लियर? नाउ जैसे कि ये सेपरेट हो गया, राइट, आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। So if I integrate on both side, I will get this one as dy divided by y, which is equal to dx divided by x. Now, so what is integration of 1 by y, right? So जैसे कि 1 by x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. So similarly इसका क्या बनेगा, log y. So this is log y is equal to log x. अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। So instead of writing only c constant, I will just write down log c. आप कहोगे सर ऐसे क्यों किया है, ताकि जो फाइनल आंसर मुझे मिले वो सिंप्लीफाइड आंसर बने। इज इट क्लियर? अभी ध्यान देना, c तो कांस्टेंट ही है। अगर मैंने log c कैलकुलेट किया तो log ऑफ कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही बनने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैलकुलेट किया है, राइट, suppose 4 is a constant. If I calculate what is log of 4, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, so that will be also constant, right? So I can write down constant के प्लेस में मैं कोई भी constant लिख सकता हूँ. It may be c, it may be 4, it may be 5, it may be log c, right? ताकि क्योंकि ये constant है तो मैं उसे कैसे भी लिख सकता हूँ, right? तो यहाँ पे मैंने लिखा है log c. Why? Because I want a simplified answer at the end, right? Okay, so this will become log y is equal to, as you can see that log x plus log c can be written as log x into c. ऐसे क्यों लिखा मैंने? Because log of m plus log of n can be written as log of m into n, राइट। अभी दोनों साइड में log है, राइट, तो मैं दोनों log ड्रॉप कर दूंगा, राइट। तो ड्रॉप किया तो क्या बनेगा, दैट इज y इज इक्वल टू x इंटू सी। एज यू कैन सी दैट जो मेरा फाइनल आंसर है वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में आया है। इज इट क्लियर? ओके, और एक चीज़, ये जो कांस्टेंट हम लेंगे कब लेंगे, log c, जब यहाँ पे और यहाँ पे log होगा तब। बाकी के समय यू कैन टेक एनी कांस्टेंट, बट अगर आपके एग्जांपल में आ रहा है कि दोनों साइड में log आ गया है तो समझ लेना कि कांस्टेंट भी हम कैसे लेंगे, log c. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, राइट, तो सेम थिंग है, dy by dx दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, राइट। एज आई टोल्ड यू y सेपरेट करो, x सेपरेट करो, और दूसरी चीज़ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ,
व्हेन यू सेपरेट, जब आप सेपरेट करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि डी वाई डी एक्स और डी वाई हमेशा न्यूमरेटर में रहे। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको पता होगा इंटीग्रेशन में डी एक्स और डी वाई हमेशा न्यूमरेटर में ही होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है, ना कि ऐसे कर दिया कि डी वाई को यहाँ पे लेके आया और वाई को ऊपर लेके आया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल, राइट। सो जस्ट मेक श्योर दैट डी एक्स एंड डी वाई शुड बी इन द न्यूमरेटर। ओके, so this is the particular example, right? As you can see that y यहाँ पे है, so I will take this y to this side. So जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, so I will take this dx to this side. तो this will become y into dy is equal to 1 plus x square into dx, right? So this is x square, right? y separated, x separated, directly do the integration. So integrating both side, so if I integrate, so this is integration of y into dy, which is 1 plus x square into dx. So integration of y, integration of x क्या होता है? x square. So similarly y का y square divided by 2, which is equal to, as you know that whenever the addition is there we do the separately integration. So this is integration of 1 into dx plus integration of x square into dx. So this will become y square by 2, which is equal to x plus integration of x square, x cube by 3 plus c, right. So here we are using the formula x raised to n, right, as we know that integration of 1 is x, right. So this is how we can solve the example, right. So यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ c लिया है ताकि मुझे ज़रूरत नहीं यहाँ पे log c लिखने की, right. log दोनों साइड में रहेगा, I can take the log c, right. Okay, next one. Okay, और कुछ easy questions यहाँ पे रहेंगे, right. तो जैसे कि आपको दिया है ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डी एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में, लेट मी टेक दिस एक्स टू दिस साइड, तो ये बनेगा ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक्स एक्स वाई वाई सेपरेट हो गया, देन आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, right. So if I integrate, so this will become integration of e raised to y dy, which is equal to integration of x square into dx. So integration of e raised to y is e raised to y, integration of x square is x cube divided by 3 plus c. This is your final answer. Okay, तो इस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, राइट। नेक्स्ट solve this is particular thing. Now again you can see that x and y हमें separate करने हैं, right. तो कैसे separate करेंगे, right. I will shift this to this side. So this is 1 plus x square into dy is equal to minus, यहाँ पे plus बन जाएगा 1 plus y square into dx. Now just see x dx यहाँ पे, dx यहाँ पे, dy यहाँ पे और y terms यहाँ पे separate कर दो, right. तो dy यहाँ पे है तो मैं y वाले टर्म्स यहाँ पे लूँगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन है, सो यहाँ पे डिवीजन बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स रिमेन्स एज इट इज़, राइट। मल्टीप्लिकेशन x के टर्म्स यहाँ पे डिवीजन बनेगा, राइट। दिस इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेपरेटेड हो गया दोनों x x y y, अगेन डू द इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, right. So if I integrate, so this will become dy divided by 1 plus y square, which is dx divided by 1 plus x square, right. So this is, right, what is formula of this? So this is tan inverse of y, which is equal to tan inverse of x plus c, right. तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट, ओके, राइट। तो okay, sorry, question number 4 will take first. Okay, so 4 is over. Next
क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिया है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्पल में या फाइनल एग्जामिनेशन में। सो dy by dx is given, which is equal to e raised to x minus y into x square। यहाँ पे x और y सेपरेट करना है, कैसे करेंगे? सो e raised to x minus y, as we know that laws of indices क्या कहता है? a raised to m minus n can be written as a raised to m upon a raised to n। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो ये बनेगा therefore dy by dx is equal to e raised to x divided by e raised to y into x square, right। now separate the x terms and separate the y terms। so y यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बनेगा e raised to y dy is equal to, यहाँ पे क्या बचेगा, e raised to x into x square into dx। now integrate, x और y दोनों सेपरेट हो गए। आई विल डू द इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। so if I integrate, so this will become e raised to y dy is equal to e raised to x x square into dx, right। so as you know that integration of e raised to y, जैसे e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to x, तो यहाँ पे e raised to y बनेगा। नाउ अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? एज यू कैन सी दैट e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वेयर, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए? मुझे याद आनी चाहिए पार्ट्स रूल की, राइट। तो हमारा पार्ट्स रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, राइट। तो यही कंसेप्ट हम फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकेंड टर्म कौन सा है? तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आईलेट। मैं मर गया, राइट। ऐसे कुछ ये नहीं है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट दैट वी यूज़। सो आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक, ए मीन्स अल्जेब्राइक, राइट। अर्थमेटिक से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा, बाकी के पहले आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा? पहला प्रेफरेंस रहेगा, राइट, ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल है, सो ये यू बनेगा और मेरा यू बनेगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या कहता है आप देख सकते हो, राइट। इट सेज फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ए जो है फिर से रिपीट करो, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट कर देना इंटू डी एक्स, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू e raised to y which is x square into integration of e raised to x is e raised to x, integration of e raised to x is e raised to x into derivative of x is 1, right, into dx, right. So I can write down this again as e raised to y which is equal to x square into e raised to x minus e raised to x into 1 means e raised to x into dx. So this can be written as e raised to y which is x square into e raised to x minus integration of e raised to x is e raised to x plus c. So this is your final answer, right. तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, राइट, सो इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू शुड गो थ्रू दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट सो दैट ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, राइट। तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि e रेज टू वाई अपॉन दिया है, सॉरी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू 3x माइनस, अगेन यूज द लॉज ऑफ इंडाइसेस, राइट। सो आई विल राइट डाउन दिस वन एज dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू e रेज टू 3x डिवाइडेड बाई 2y, सॉरी e रेज टू 2y, right, plus
x square. Now just see, as we know that from laws of indices, a raised to minus m जब भी power negative बनेगी, I will write down that term in the denominator as 1 divided by a raised to m. तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 divided by e raised to 2y, right? From both these two, e raised to 2y is common, so let me take e raised to 2y, e raised to x, or dy by dx. So 1 by e raised to 2y is common, so remains is e raised to 3x plus x square. राइट, नाउ सेपरेट करना पड़ेगा. आप देख सकते हो x और y दोनों सेपरेट, सो आई विल टेक दिस e रेस टू 2y टू दिस साइड. तो ये बनेगा e रेस टू 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा e रेस टू 3x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स. राइट, अभी x और y सेपरेट हो गया ना, वी कैन इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. So if I integrate, so this is integration of 2y into dy is equal to integration of 3x plus x square into dx, right? Integration of 2y, right? So as you can see that power is linear, तो यहाँ पे इसका integration बनेगा e raised to 2y into 1 upon 2. क्यों? Derivative of 2y with respect to, right, y क्या बनेगा, 2 बनेगा. Next, which is equal to, separate the integrals e raised to 2x dx plus integration of x square into dx. तो ये बनेगा e raised to 2y into 1 by 2, which is again linear है 3x, तो ये बनेगा e raised to 3x into 1 upon derivative of 3x is 3 plus integration of x square is x cube divided by 3 plus c. So this is your final answer. Okay, right, so this is how we solve such kind of examples. Next, okay, right, as you can see, given x और y हमें यहाँ पे फिर से सेपरेट करने हैं. So if I do the separation, कैसे करोगे, I am keeping this term here itself, I'm shifting this term to this side, so this is minus square root of 1 minus y square into dx, right? So x term one side, y term at one side, so dy यहाँ पे as it is रहेगा. y वाला term कौन सा है, a वाला, तो इसे यहाँ पे लेके आओ. So this is square root of 1 minus y square, minus remains as it is dx. Shift this x term to this side, so this is square root of 1 minus x square. X and y got separated. Integrate, integrating both side. So if I integrate, so this is integration of dy divided by square root of 1 minus y square, which is equal to minus integration of dx divided by square root of 1 minus x square, right? So what is integration of this? So this is sine inverse, so sine inverse of y, which is equal to minus sine inverse of x plus c, or I can write down this one as sine inverse of y plus sine inverse of x, which is equal to c, right? So this is how we solve such kind of examples, right? Next, okay, right, so this is again the same thing, separate the x and y terms. So where are x and y term, this is y, this is y, this is y, right? And x terms are this, this and this, right? First step, what I will do, 3 e raised to x into tan y into dx remains as it is. I will shift this entire term to this side, so this is minus 1 minus e raised to x into secant square y into dy, right? Now separate the x terms and y terms, right?
तो डी एक्स यहाँ पे ही रहेगा, एक्स के साथ और कौन है, 3e⁻x है, तो x वाला टर्म यहाँ पे है, सो शिफ्ट दिस टू दिस साइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन बनेगा, 1 माइनस e⁻x विच इज़ इक्वल टू माइनस एज इट इज़, y वाले टर्म्स यहाँ पे रखने हैं, तो secant स्क्वायर y रिमेन्स ऑन दिस साइड इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय y टर्म कौन सा है यहाँ पे tan y, सो दिस इज tan y, right? Again x and y separated, to the integration, integrating, right, both side. So if I integrate, so this is, now just be careful, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको डायरेक्टली बाहर ही रखना, सो दैट स्टेप्स थोड़े हमारे बचेंगे। e⁻x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻x विच इज़ इक्वल टू माइनस बाहर आएगा, this is secant square y divided by tan y into dy, right? Now you can see that if I consider this is as f of x, तो इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या बनेगा, 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x, right? Next, if I consider this is to be f of x which is equal to, right, tan x, sorry, tan y, then f dash of x, sorry, I will take this one as y. If f of y is this, then f dash of y will be equal to secant square y, right? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, ओ वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, कौन सा, दैट इज f dash of x divided by f of x dx can be written as log of f of x, that is log of denominator plus c. Is it clear? Okay, right? Next, now as you can see that यहाँ पे माइनस x होना चाहिए और यहाँ पे तो x e⁻x है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा, ध्यान से आपको देखना है, राइट? सिंस आई वॉन्ट माइनस एक्स, क्यों, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस e⁻x होना चाहिए टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, सो आई विल जस्ट राइट डाउन दिस इज -3, और इस -3 को मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पे -3 लिख के, क्यों, माइनस माइनस प्लस होगा तो इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा। इज इट क्लियर? बट मैंने एडजस्टमेंट किया है बिकॉज ऑफ दिस। इज इट क्लियर? यहाँ पे तो कुछ एडजस्टमेंट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, राइट? बिकॉज tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सॉरी tan y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, secant square x जो प्रेजेंट है वहाँ पे, राइट? तो ये बनेगा -3 log of denominator, that is 1 minus e⁻x which is equal to minus log of denominator, that is tan y। जैसे कि मैंने कहा था, जब भी log आया हमेशा लिखना log c, राइट? तो आई विल शिफ्ट दिस टू दिस साइड, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ tan y माइनस 3 log of 1 minus e⁻x which is equal to log of c, right? Now which can be written as log of tan y minus log of 1 minus e⁻x cube is equal to log c। ऐसे क्यों लिखा मैंने, because of this m log a can be written as log of a⁻m, right? Now I can write down this one as log of m minus n can be written as m, that is tan y divided by 1 minus e⁻x ब्रैकेट क्यूब विच इज़ इक्वल टू log c। log log दोनों से ऐसे ड्रॉप कर दो, बचेगा क्या, tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁻x क्यूब इज इक्वल टू c। सो दिस इज योर आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट, ओके, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है बट कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा।
बोला है कि सॉल्व दिस, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो कंसेप्ट कैसा है, राइट, ध्यान देना अभी। सेम थिंग, x x y y सेपरेट कर लेना, राइट। फॉर दैट आई राइट डाउन दिस वन एज secant square x into tan y into dx can be written as secant square y into tan x into dy, सॉरी यहाँ पे माइनस बनेगा, राइट। नाउ एक्स एक्स वाई वाई सेपरेट करो, x कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। y कहाँ पे है, यहाँ पे भी है। y यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सेपरेट इट। सो secant स्क्वायर x dx मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बनेगा डिवीजन, दैट इज tan x माइनस secant स्क्वायर y, इस साइड में एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय tan y। सेपरेट हो गए, राइट। टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, integrating both side. So if I integrate, so this will become integration of secant square x dx divided by tan x, which is equal to minus secant square y, sorry, divided by tan y into dy, right। अगेन द सेम कंसेप्ट, राइट। कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, माई एफ ऑफ एक्स इज tan x, देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, राइट, एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा secant स्क्वायर एक्स। इस साइड में क्या होगा, एफ ऑफ वाई क्या है मेरा, दैट इज tan y, तो एफ डैश ऑफ वाई क्या बनेगा, secant स्क्वायर y, राइट। अप्लाई द कंसेप्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। सो यूज द कंसेप्ट, so this will become log of tan x, which is equal to minus log of, sorry, log of tan y, as you know that जब भी log आएगा take log c, right। shift this to this side, so this is log of tan x plus log of tan y is equal to log of c, right। I can write down this one as log of tan x into tan y, which is equal to log c। ऐसे क्यों लिखा, log of m into log, sorry, log of m plus log of n is log of m into n। Drop the log from both side, so this will remains tan x into tan y is equal to c, right। But उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्हाट यू मीन बाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में अल्फ़ाबेट्स आएंगे ए बी सी डी, जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको सी की वैल्यू पता रहेगी, जैसे सी माने 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वही हमें चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। स्टार्टिंग में आपको दिया है इफ़ y इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 कॉमा y इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो दिस विल बी इक्वल टू tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू c। सो tan पाई बाय 4 कितना बनेगा, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1, राइट। तो ए वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा सॉल्यूशन रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने, राइट, ओके। तो मैं आपको इनिशियल स्टेप बताऊंगा, बाकी के एग्जांपल्स आपको आगे सॉल्व करने, ठीक है। कैसे करोगे यहाँ पे, राइट।
सो आई विल जस्ट राइट डाउन dy बाई dx. इन दोनों में इफ़ आई टेक x कॉमन, व्हाट रिमेन्स y प्लस वन प्लस ए y प्लस वन एज इट इज रहेगा. सो लेट मी राइट डाउन इन ब्रैकेट y प्लस वन. Again you can see that y plus 1 is common, so what is remains dy by dx is equal to y plus 1. अगर common है तो बचेगा क्या, x प्लस यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब रहेगा 1. राइट, नाउ x और x, y और y सेपरेट करो. कैसे बनेगा, dy बाय सॉरी y टर्म्स कौन से, a वाला, सो ब्रिंग इट टू दिस साइड, y प्लस 1. राइट, और यहाँ पे x इस साइड में जाएगा तो यह बनेगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स. नाउ डू द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग, राइट, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय y प्लस 1 विच इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स. राइट, तो अभी आपका इसका इंटीग्रेशन करना. राइट, तो मैं एज अ होमवर्क सॉल्व करूँगा. राइट, ये आपको बताऊँगा सॉल्व करने के लिए. राइट, तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा. राइट, अगर दिक्कत हो रही है यू कैन कमेंट, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस. इसमें बहुत आसान है. राइट, यहाँ पे सेपरेटली इंटीग्रेशन करना, और यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो लॉग वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो बाकी के एग्जांपल भी सिमिलर बेसिस पे रहेंगे, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ आपको एडजस्टमेंट करने हैं. राइट, बाकी के एज यूजुअल एग्जांपल्स रहेंगे. राइट, अभी ये हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं सेपरेट करूँगा. फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिखूँगा, दैट इज़ y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस इस साइड में सॉरी माइनस इस साइड में प्लस हो जाएगा, 3x प्लस x इंटू वाई स्क्वायर. राइट, इन दोनों में as you can see that y is common, let me take that y common, what remains 1 plus x square dy by dx which is equal to, यहाँ पे फिर से x common बचेगा. राइट, बचेगा 3 plus y square. Now separate the x and y terms. So this is your y term, this is y term, and this is your x term and x term. Right, तो y टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगा y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर. x यहाँ पे जाएगा, dx इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेपरेट हो गया. आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. So if I integrate on both sides, I will get this one as integration of y into dy divided by 3 plus y square, which is equal to integration of x into dx divided by 1 plus x square. Right, अब ये steps थोड़े ध्यान से देखना. Right, so what I will do, I will take this denominator as f of x again, that is 3 plus y square. Right, I will find the integration, sorry, derivative of this f dash of x, derivative of constant 0, derivative of y square is 2y. Sorry, let me take this one as y, fy and f dash of y. Right, similarly on this side I will take f of x, which is equal to x, and f dash of x is equal to, derivative of 1 is 0, derivative of x square is 2x. Right, so I can use the formula of f dash of x divided by f of x, जो कि होगा log of f of x plus c. but as you can see that in the numerator, right, numerator में तो 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो क्या करें. राइट, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा तो आई नीड टू एडजस्ट दिस 2 बाय 1/2. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा 1/2, और इस दोनों साइड में अगर आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा. राइट, कैसे ही आप आपके हिसाब से कर सकते हो. राइट, तो होगा क्या अभी नेक्स्ट,
1/2 as it is, राइट। तो सिंस इट इज सेटिस्फाइंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो ये बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 + y² which is equal to, I will write down 1/2 into log of 1 plus x² into, I will write down log of plus, sorry, log of c divided by 2। अब आप कहोगे सर अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? ताकि मैं 1/2 हर एक टर्म से कॉमन ले सकूँ और कैंसिल कर सकूँ, ताकि मेरा आंसर फाइनल में राइट सिंप्लीफाइड आंसर आए, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/2 कॉमन लूँगा, राइट, ऑब्वियसली कॉमन ही है, राइट। सो लॉग ऑफ 3 + y² which is equal to 1/2 common, right? So this is log of 1 plus, right, 1 plus x² plus log of c। 1/2 cancel, so यहाँ पे मैं लिखूँगा log of 3 plus y², now bring this to this side, minus log of 1 plus x² which is equal to log of c, राइट। log of m minus n, फिर से लॉगरिथमिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज log of 3 plus y² divided by 1 plus x² which is equal to log of c। log दोनों से ऐसे ड्रॉप कर देना, बचेगा क्या, 3 plus y² divided by 1 plus x² which is equal to c, right। So this is a solution of this particular example, right? Okay, so next one, right। तो ए वाला पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना, राइट। एट द एंड आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, राइट। तो कैसे करोगे, इनिशियल स्टेप में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रिमेनिंग आप आपके तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अगेन द सेपरेट थिंग दैट इज 1 plus x³ into dy which is equal to x² into y into dx। x और y सेपरेट करो, दिस इज x टर्म, दिस इज x टर्म, दिस इज y टर्म, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, dy डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पे x² into dx डिवाइडेड बाय 1 plus x³। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे बनेगा dy बाय y विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x² dx डिवाइडेड बाय 1 plus x³। तो इसका इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, log y बनेगा। बट अभी इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, इफ़ आई कंसिडर f of x एज अ डिनोमिनेटर, सो f डैश ऑफ x क्या बनेगा, 3x², बट यहाँ पे सिर्फ x² है, 3 नहीं है, तो मैं उसको एडजस्ट करूँगा, 3 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो दिस इज 1/3 log ऑफ डिनोमिनेटर 1 plus x³ plus log c, राइट। सो log c लिख सकते हो, नहीं तो आप डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हो, राइट, जैसे आप चाहो। सो आई विल मेक इट डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 कॉमन है, बचेगा क्या, log ऑफ 1 plus x³ प्लस log ऑफ c। तो अभी ये 3 इस साइड में जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ y, राइट। सो दिस इज 3 into log ऑफ y विच इज इक्वल टू log ऑफ 1 plus x³ इंटू सी, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ y³ इज इक्वल टू log ऑफ 1 plus x³ इंटू c, बिकॉज ऑफ दिस m log a which is log of a raised to m, right। ड्रॉप log ऑन बोथ साइड, तो बनेगा y³ इज इक्वल टू 1 plus x³ इंटू सी।
but what is value of x and y? So x is equal to 1 and y is equal to 2. So y is equal to 2 means 2 cube is equal to 1 plus 1 cube into c, that is 8 is equal to 1 plus 1 is 2 into c. So what is value of c? Therefore c is equal to 8 divided by 2, which is equal to 4. Now put this value in this particular equation, sorry, put this value, right, let me call this as equation number 1. यहाँ पे substitute करो तो क्या बनेगा, right? So this is y cube is equal to 1 plus x cube into 1, sorry, into 4, not 1, 4, because value of c is 4. Okay, right? So this is how we solve such kind of examples. Okay, now I will give you some exercise to solve, right? तो ये कुछ एक्सरसाइज है, राइट, आप इसको नोट डाउन करो, राइट. जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व किए उसी तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है. जो कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किए थे, फॉर्मूलेज एफ ऑफ एक्स या डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, वही कंसेप्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होंगे, ठीक है. सो दिस इज ए एक्सरसाइज आल्सो, राइट. जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. बहुत ही ईजी तरीके से हमें सॉल्व करना है. अगर आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा तो आपको ये आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल सेपरेबल, राइट. तो जो फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, राइट, तो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से अप्रोच रखना है, राइट. सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, राइट, जस्ट प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट मिल सके, राइट. थैंक यू.